Assalamu alaikum grade 7. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to do our summer pack question answers. These are the question answers that is in your book as well in the exercise portion. Okay. So why do larger multicellular plants need a transport system? Why they need a transport system? The answer of this you will get on your book, page number 30. Larger plants are made up of many cells. It would take a long time for gases and other materials to diffuse into them from the outside and for waste products to diffuse out. So that is why they need a transport system. Okay, you will write this answer, not from the summer pack. Next question is, what are the names of the two sets of tubes which make up the transport system of a plant? कौन से दो सेट्स हैं ट्यूब्स के? यू ऑल नो वेरी वेल, दैट इज़ xylem and phloem. And what is their the xylem and phloem connect the top and bottom of the plant. Okay, this is their function. Now where about would you find the two sets of transport tubes in a leaf? So plants have tubes that run through their stem and roots. प्लांट्स के अंदर स्टेम्स में और रूट्स में ट्यूब्स होती हैं. दीज ट्यूब्स कैरी वाटर and minerals and sugars. Okay, so these are the two sets of transport tubes. Now what is the name of the process by which water enters the root hair? वो प्रोसेस बताना है जिसके थ्रू वाटर एंटर होता है रूट हेयर्स में. All of us know very well that water is entered through the in the root hairs through a process that is called osmosis. ठीक है, osmosis क्या था कि वाटर जो है वो एक लोअर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में चला जाता है. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम osmosis कहते हैं. Now which set of tubes carry water and dissolve mineral salts? Describe how it does. ये कैसे होता है? ठीक है, तो कौन सी सेट्स हैं? दिस आंसर इज़ रॉन्ग. आपको पता है कि वाटर और मिनरल सॉल्ट कौन से ट्यूब्स लेके जाती हैं? दैट इज़ डन बाय xylem. Okay, so you will write over here in your own words that it is done by the xylem. Okay, and how they do that you can also write that. And which sets of tubes carry dissolved food to storage areas, growing points and other places where it is needed? You know very well कि food कौन carry करके ले जाता है? That is done by the phloem. So you will write the answer in your own words that phloem, the food that is prepared by the leaf, that is carried to the storage areas or growing points and all other places through the phloem. Most garden plants would wilt and die if you water them with a strong salt solution. अगर आप उसको strong salt solution दोगे, मीन्स के अगर आप salt solution वाला जो है वो वाटर उसमें डालते हो, तो पता है बेटे अभी हमने पढ़ा था कि वाटर कैसे एंटर होता है प्लांट्स की रूट्स में? थ्रू ओस्मोसिस. क्योंकि सॉइल में मिनरल सॉल्ट कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है, जबकि रूट्स में वाटर कम होता है और मिनरल सॉल्ट और शुगर वगैरह ज़्यादा होता है, सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है. तो लेकिन अगर हम खुद से ही सॉल्ट सोल्यूशन डाल देंगे सॉइल में, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो रूट हेयर्स के बाहर वाला सोल्यूशन होगा, जो सॉइल का सोल्यूशन होगा, वो हायर कंसंट्रेटेड हो जाएगा. इससे क्या होगा कि वाटर के अंदर वाला पानी भी बाहर आना शुरू हो जाएगा. मीन्स कि बाहर पानी कम हो जाएगा और वाटर के अंदर पानी ज़्यादा, प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा होगा, तो वो भी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और प्लांट में वाटर की डिफिशिएंसी हो जाएगी एंड दैट वुड बी विल्ट. वो जो है वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा या मुरझा जाएगा. ओके, so this is the answer. Now what is a transpiration stream? ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम क्या है कि ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम फ्लो वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. एक फ़्लो है कि वाटर और मिनरल सॉल्ट एक फ़्लो में एक बहाव में नीचे से ऊपर जाते रहते हैं. और ये कैसे होता है? क्योंकि वाटर जो है वो एवेपोरेट होता है थ्रू द प्लांट लीव्स
जैसे जैसे वो एवेपोरेट होता है उसकी जगह के लेने के लिए नीचे से रूट्स में से और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बना देता है, ठीक है, स्टीम बना देता है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस डू यू थिंक विल प्रोड्यूस अ हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? हमने पढ़ा था कि कौन से वेदर कंडीशंस थे जिसमें ट्रांसपायरेशन हाई हो जाती है। अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। हमने ये देखा था कि व्हेन देयर इज़ मोर लाइट, जब ज़्यादा लाइट होगी, स्टोमेटा ओपन होंगे, तो जो है वो वाटर जल्दी से जो है वो एवेपोरेट होगा, बाहर जाएगा, तो नीचे से ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब होगा थ्रू रूट हेयर्स और वो उसकी जगह लेने के लिए ऊपर आएगा, तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो हाई हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ मोर सनलाइट, इफ़ देयर इज़ मोर वार्म वेदर, अगर वहाँ गर्मी बहुत है, या फिर मोर विंडी वेदर, दीज ऑल आर द कंडीशन इन विच the rate of transpiration will be high. Okay, so now question number 10, explain why a potted plant placed on a sunny window sill will soon start to wilt. अब आपने सूरज में एक पॉटेड प्लांट, गमले में जो प्लांट है वो प्लेस किया है, सूरज के बिल्कुल सामने एक विंडो है वहाँ पर, सो इट विल स्टार्ट टू विल्ट। वो क्यों विल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा बेटे? क्योंकि जब सूरज उस पर पड़ेगा तो एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हाई हो जाएगा, जबकि हमने तो सॉइल में वाटर एंटर ही नहीं किया। सो इन दिस वे के एब्जॉर्बिंग का रेट जो है वो कम हो जाएगा नीचे से, और जो एवेपोरेटिंग का प्रोसेस है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्लांट में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड द प्लांट विल लॉस इट्स टर्जिडिटी, मतलब उसका जो तनाव है वो ख़त्म हो जाएगा एंड इट बिगन्स टू विल्ट, और वो मुरझाना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट, नाउ व्हाई डू यू थिंक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड एट नाइट? एज यू नो, देयर इज़ नो सनलाइट, no stomatas are open, and mostly the weather is cool in the night. So these all are the factors that reduce the transpiration rate at night. Okay, so you will write the answer in your own word, you will not write this answer. Why is the summer it is better to water potted plants during the evening than during the night? के आपने जो पानी है वो इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग देना है, नॉट एट द नाइट। वाई इट इज़ गुड? अगर हम उसको पानी देंगे तो नाइट इस टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे प्लांट्स आर लेस स्ट्रेस फॉर लैक ऑफ वाटर। उस टाइम पर प्लांट जो है वो वेपोरेट नहीं कर रहा होता, पानी को बाहर नहीं भेज रहा होता, ठीक है, क्योंकि मौसम अच्छा होता है उस टाइम पे, जो है वो गर्मी की कमी होती है, सो वाटर फुली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जो वाटर हम डालते हैं प्लांट को वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्बिंग रेट हाई हो जाता है, जबकि उस टाइम पे लैक ऑफ वाटर का स्ट्रेस जो है वो बहुत कम होता है। दैट इज़ वाई वी शुड गिव वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 4 इज़ डन. We will start our next chapter inshallah in the next class. Till then, Allah Hafiz.